Hello everyone, as I have been teaching you root words, so let's start our today's class. The first word of our today's class is omni, O-M-N-I. The meaning of omni is all. Omni का meaning है all. Okay. Now let's have a look on the words. The first word which can be made by omni is omnipotent. And we can make omniscient, omnipresent, omnicompetent, and omnivorous. Okay, now let's understand their meanings. Omnipotent, they are two words, omni and potent. The meaning of omni is all. Okay, and potent, we have read this word before. Potent means powerful. Okay, that means a person or anyone who has all the power. ऐसी कोई चीज जिसके पास सारी शक्तियां हो. एंड नॉर्मली वी यूज दिस वर्ड फॉर गॉड. हम भगवान के लिए वर्ड यूज करते हैं. omnipotent means having all the power. We also use almighty. almighty भी हम कहते हैं भगवान को. Okay, so all means omni और all एक ही है और mighty means powerful. Okay, दोनों वर्ड सेम है. The next word we have that is omniscient. Here are two words, omni and scient. The scient denotes knowledge. Scient का meaning होता है knowledge. Okay, and omniscient means a person who has all the knowledge. कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान या कोई भी जिसको हर चीज के बारे में पता हो. ओके, knowing all the things, knowing all the things. Next word that we have is omnipresent. Omni का means all and present का means present. So anyone who is present at all the places or everywhere. ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी जो कि हर जगह present हो. Okay, a person or anyone who is present everywhere at all times. Okay, so these three words omnipotent, omniscient and omnipresent, ये तीनों वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? गॉड के लिए, भगवान के लिए. ओके, गॉड इज omnipotent, दैट मीन्स उनके पास सारी पावर्स हैं. ही इज omniscient, उनको सब चीज़ के बारे में पता है. एंड ही इज omnipresent, और वो हर जगह प्रेजेंट है. The next word that we have is omnicompetent. Omnicompetent means one who is able to handle everything or one who has legal authority to handle everything. ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास से लीगल अथॉरिटी हो कि वो सारे मामलों को देख सके या सारे मामलों को हैंडल कर सके. That person would be called omnicompetent. A person who is able to handle everything or all the things. Okay, and the last word is omnivorous. We have already discussed this word omnivorous. There are two words, omni and vorous. Vor का meaning क्या था? To eat. खाने से रिलेटेड था, VOR और VOUR. So omnivorous means an animal who eats everything, who eats all the things. That means he eats plants as well as flesh of other animals. कोई भी ऐसा एनिमल जो कि प्लांट्स भी खाता है और दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को भी खाता है, दैट मीन्स जो सब कुछ खाता है, दैट would be called omnivorous. Now let's move towards the second word of today's lecture. Our second word is nर.
NARR एंड द मीनिंग ऑफ नर इज टू टेल। नर का मीनिंग होता है बताना और टू गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट समथिंग, या किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना। ओके, कौन कौन से वर्ड नर से बन सकते हैं? एट फर्स्ट नरेट, नरेशन, नरेटर, नरेटोलॉजी, and इनरेबल। Okay, now let's understand their meanings. The first word is narrate. नरेट में नर के साथ में ATE लगा हुआ है। ये जो ATE है ये वर्ब को डिनोट करता है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे ATE होगा दैट मीन्स वो जो वर्ड है वो एक वर्ब है। नरेट का मीनिंग होता है टू टेल अ स्टोरी और टू डिस्क्राइब एन इवेंट। ठीक है, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना, किसी स्टोरी को बताना नरेट कहलाता है। Second word that we have is narration. Okay, the process of narrating something. किसी चीज़ को बताने की प्रोसेस क्या कहलाती है? नरेशन। The process of narrating something. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज नरेटर। ओके, यहाँ पे नर के साथ में एक वर्ड है दैट इज TOR। ये डिनोट करता है पर्सन को। जब किसी वर्ड के पीछे TOR लगा होगा दैट मीन्स हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। सो दैट पर्सन हु नरेट्स द इवेंट और हु नरेट्स द स्टोरी, वो पर्सन जो स्टोरी बताता है उसे हम कहते हैं नरेटर। अ पर्सन हु नरेट्स the story. Suppose I am narrating a story to you, so I will be the narrator. अगर मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ तो मैं क्या होंगी? मैं होंगी नरेटर। ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज नरेटोलॉजी। लॉजी जो वर्ड है ये डिफाइन करता है स्टडी को। ओके, सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन नरेटिव्स इज कॉल्ड नरेटोलॉजी, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कहानी को किस तरह से बताया गया है। दैट स्टडी इज कॉल्ड नरेटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन नरेटिव्स। ओके, लॉजी से बने हुए आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे एज बायोलॉजी और जूलॉजी। ओके, सो लॉजी मीन्स स्टडी। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनरेबल। ओके, यहाँ पर नरेट के साथ में नर के साथ में लगा है इन, और ये इन है ये डिफाइन कर रहा है नॉट को। इनरेबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड और एनीथिंग दैट इज इनडिस्क्राइबेबल। ऐसी चीज़ जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको नरेट नहीं कर सकते, दैट थिंग वुड बी कॉल्ड इनरेबल। ओके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग नरेटेड। ओके, उसे हम कहेंगे इनरेबल। इसको हम इनडिस्क्राइबेबल भी कह सकते हैं, इनडिस्क्राइबेबल। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स जो कि नर से बने थे। एंड एज आई हैव
told you only 5 words, but you have to search as many words as you can. Okay, आपको और भी words ढूंढने हैं जो कि नर से बने हुए हैं. So that's all about today's class. We will meet in next class. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.